حسین سیٹھ موسم فخر میں کچھ جانتے تھے، جھنڈا بھی میرا ڈنڈا بھی میرا جناب. یہ ہے وہ پیغام جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یہ پیغام کو ڈھکے چھپے انداز میں نہیں دیا گیا، بلکہ جناب ایک باضابطہ طور پر تقریب سے خطاب کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جناب جو ایجنڈا طے کر لیا گیا ہے اس ایجنڈے سے کسی بھی صورت ہٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس مرتبہ کسی کو بھی پاکستان کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ پاکستان کی معیشت، ان دونوں ایشوز کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر کوئی بات بندہ پوچھے کہ جناب کون ہے جو پاکستان کی معیشت سے کھیل رہا ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی آڑ میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو یہ دونوں شخصیات جو ہے وہ اشارے وہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کی طرف جاتے ہیں جو اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر لگا رہے ہیں، یعنی جناب عمران خان نیازی صاحب. ان کے علاوہ اور کوئی شخصیت ایسی ہے نہیں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا بھی ذمہ دار ہو اور پاکستان کی سیکیورٹی کنڈیشنز کو کمپرومائز کرنے کا بھی، جس کا جو ثبوت ہے وہ ہمارے پاس 9 مئی ہے، اور 9 مئی بھی عمران خان صاحب کا ہی ایک تحفہ ہے جو انہوں نے اپنے ماضی کے دوستوں یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب گئے ہوئے تھے جناب خانے وال کے اندر. انہوں نے جو گرین انیشیٹو جس کا جو ہے وہ لانچ کیا تھا، ابھی ہائی کورٹ نے جس کا سٹے آرڈر خارج کیا 11,000 ایکڑ زمین کا، اس کے وہ باضابطہ طور پر کام کے آغاز کرنے گئے تھے. اس بات کے 2 انفیکٹ پیغام ہیں. ایک یہ کہ فوج جس کام کا بیڑا اٹھا لیتی ہے اس سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹتی، اور دوسرا واضح طور پر جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، کیونکہ اس پروجیکٹ کے اندر سعودی عرب بہت ہی زیادہ کین ہے پاکستان کے اس شعبے کے اندر، یعنی پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا. لہٰذا یہ جو دونوں کام ہیں یہ کیے گئے، اور خانے وال کے اندر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب نے واضح انداز میں اس بات کا ذکر کیا کہ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکال کر ہی دم لیں گے. اس کا یہ بات بھی جو کہتے ہیں نا فارسی میں کہتے ہیں ہشت پہلو، یعنی اس کے بھی کئی پہلو ہیں، ایک سے زائد پہلو، اور یہ جو اس کے پہلو ہیں خاص طور پر اس ایک بات کو اگر ہم لے لیں کہ جناب موجودہ بحران کو نکال کر ہی دم لیں گے، تو اس کا ایک اور واضح ثبوت ہمیں مل جاتا ہے گرین انیشیٹو سے کہ جناب ابھی تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اس گرین انیشیٹو کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لانچ کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی اس سارے کے سارے پروجیکٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا، لیکن یہ پروجیکٹ اپنے کام کا آغاز جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. اس کے بعد اس پروجیکٹ کے اوپر ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے جنرل وہ جو ہے شہباز شریف صاحب ان کو قائل بھی کیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ جناب اگر آپ فورن انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تب آپ کو ایسے ہی جو انیشیٹوز ہیں ان کو لانچ کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب کی کیا مجال جناب، جب سامنے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہوں شہباز شریف صاحب کی چونچا نکل ہے، وہ تو نکلنے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے بندہ میوٹ ہو جاتا ہے. تو وہ شہباز شریف صاحب نہ صرف میوٹ ہو گئے بلکہ انہوں نے کنونشن سینٹر کے اندر تقریر سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ جناب یہ جو سیرا میرے سر باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، یہ میرا سر اس لائق نہیں ہے، میرے آلریڈی 3-4 بندے پڑے ہیں. یہ جناب عاصم منیر صاحب ہی ہیں جو اس پروجیکٹ کے روح رواں ہیں. پھر وہ جو بزنس جو ہے فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی، وہاں پر بھی چیف آف آرمی اسٹاف موجود تھے، اور اس کے بعد میں اس انیشیٹو کی ویڈیوز دیکھ کے حیران رہ گیا جو کل ایک دوست کے ذریعے مجھے موصول ہوئی، اور وہ جو اس تقریب کے اندر خانے وال کے اندر موجود تھے، اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ جناب اگر کوئی کام پاکستان کی بیوروکریسی کو صحیح معنوں میں ڈنڈا اگر چڑھے تو پھر کس طریقے سے کام ہوتے ہیں یار. ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زمین کو صفائی کر رہے ہیں، اس کو لیولنگ جیسے کہتے ہیں لینڈ لیولنگ کی جا رہی ہے، ایکسیویٹر موجود ہے جناب، کرینے موجود ہیں، وہ جو ٹریکٹرز ہیں وہ موجود ہے. کام بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے. بے شک یہ اس تقریب کے لیے کیا گیا ہو لیکن کام ہوتا ہوا نظر آنا بھی بہت بڑا اس کے اندر پہلو ہے. اب یہ جو ریزالو ہے کہ جناب موجودہ بحران سے ملک کو نکال کر ہی دم لیں گے، تو اس وقت پاکستان کا بحران کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت سب سے زیادہ جو سنگین صورتحال ہے وہ ہے معاشی بحران کی. ٹھیک ہے جی، معاشی بحران آگے آ کے جڑتا ہے ہمارے سیکیورٹی کنڈیشن سے، اور ان دونوں چیزوں کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہے ہمارا پولیٹیکل سچویشن یا پولیٹیکل سینیریوز جو بدلتے جاتے ہیں دن بدن. اور خاص طور پر
जिस तरीके से इमरान खान साहब के दौर में सियासी ताले आजमाई की गई है, उसने भी इसी बात की तरफ सबूत दिया है कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है आपके माशी इस्तेहकाम के लिए, और माशी इस्तेहकाम के बगैर आपकी इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी पैरामीटर्स वो पूरे नहीं हो सकते। अब ये जो बात की गई है आसिम मुनीर साहब की तरफ से, ये इस बात का इजहार है कि किसी को सियासत के अंदर भी चूं चरां करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और किसी को भी मईशत के लिए जो पैरामीटर्स या जो लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं उसको भी हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीब में आसिम मुनीर साहब को इस बात का अंदाज़ा था, और मेरा ये ख्याल है कि उनकी ये जो आज की तकरीर है, कल की तकरीर सॉरी, ये एक वेल प्लान्ड तकरीर थी, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही वो ये ख़बर नशर होगी तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र होना शुरू हो जाएगा, जी फौजदा की काम में कि वो जनाब आए और आकर ज़राअत करे, फ़ौज की काम है वो DHA बनाए, फ़ौज का क्या काम है जनाब कि वो माइनिंग करे, फ़ौज का क्या काम है कि वो हुकूमतों को पीछे छोड़कर ख़ुद लीड करे। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सारी अपनी तकरीर के अंदर इन तमाम बातों का पहले ही अहाता कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कोई नया काम नहीं है, 1960 की दहाई के अंदर भी हम ये वाला काम कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलावा कुछ और ममालिक हैं जहाँ पर बहरान से मुल्क को निकाला उनकी फ़ौज ने, और उन्होंने चाइना की इस हवाले से मिसाल दी कि जनाब चाइनीज़ की वो जो थी चाइनीज़ लिबरेशन आर्मी, उसी ने ये सारी की सारी टेबल को टर्न किया था। और आज अगर चाइना एक तरक्की की एक ख़ास एक स्टेज पर मौजूद है, एक मंजिल पर मौजूद है, तो उसकी वजह एक तो पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी है, और दूसरा वहाँ पर कोई भी बंदा जो पॉलिसीज़ बन जाती हैं उससे डिविएट करने का उसको इजाज़त नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये भी कहना था कि भिखारी का कुशकूल उठाकर बाहर फेंकना है, और इसके लिए जो दुनिया है वो हमें तरक्की करने से नहीं रोक सकती, बहरानों से पाकिस्तान को निकाल कर ही दम लेंगे। और उन्होंने कहा कि जनाब पाक फ़ौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फ़ख्र है, फ़ौज आवाम से है और आवाम फ़ौज से। फैसला किया है पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लिया जाएगा। इस बात का मतलब बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि जनाब ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं इससे किसी भी सूरत पीछे हटने का कोई इम्कान नहीं है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर ये इमरान खान साहब के ये जो अदालतों वाला सिनेरियो है, ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब इमरान खान साहब का ख़ात्मा बिलखैर करना भी इसी एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर एजेंडा उनका है और डंडा भी उन्हीं का होगा, ताकि वो डंडा अपना प्रॉपरली काम कर सके। कैसे, इसकी भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साहब को जनाब कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक वो जो है वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए। उनसे कहा गया कि जनाब आपने पेश करना है इस बंदे को हमारे सामने सुबह 10 बजे। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश नहीं हुए, बल्कि इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, जहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है तोशाखाना केस के हवाले से जो इमरान खान साहब की अपील है और लोअर कोर्ट यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर कार्रवाई को रोकने यानी 2 दरखास्तें हैं, दोनों की बैक वक्त समाअत की जा रही है आमिर फारूक साहब की अदालत में। क्योंकि कल की जो वीडियोस सामने आई थी जहां पर इमरान खान साहब के चहीते वकला जो हैं वो हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर हमला आवर भी थे, उनके बारे में नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे थे, उनको गालियां भी दे रहे थे। तो ये इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश थी। अब असूली तौर पर क्या होना चाहिए था? आपको याद है कि इमरान खान साहब ने पिछले साल अगस्त के अंदर एक जलसे से खिताब करते हुए जो जज थी ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिन्होंने शहबाज गिल का रिमांड दिया था और उनको कस्टडी में दे दिया था पुलिस की, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने तनकीद की थी और उनसे कहा था ज़ेबा चौधरी हम तुमको देख लेंगे, जलसे से खिताब के दौरान। और फिर इस मामले पर जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया था और इमरान खान को उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस दिया था। वहां पर क्या हुआ था, जज साहिबा को जलसे के अंदर ये बात कही गई थी कि हम तुमको देख लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि जज साहब को इमरान खान साहब की मौजूदगी में
उनके वकला ने माँ बहन की नंगी गालियां दी, नंगी गालियां जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये नहीं है कि हट गई हैं। और इमरान खान साहब वहां पर ये गालियां सुनते हुए कि जज साहब को गालियां पड़ रही हैं, वो सर झुका के बैठे रहे और उन्होंने एक मर्तबा भी किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि जनाब ये जो कुछ हुआ है मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं की। और जब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं तैयब बलोच साहब, उन्होंने इमरान खान से कहा कि जनाब पाइंदा शर्म नहीं आती, तुम की हरकत करते फिरते हो, बनिस्बत इसके कि इमरान खान साहब से हो सकता है उनका ये तर्ज तकल्लुम बेहतर ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो बात वो करेंगे वो अपने इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं करेंगे, बल्कि वो अदालतों के आला तरीन अदालत के सहाफ़ी यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर बात करेंगे। बोल के इंतज़ामिया ने जनाब तैयब बलोच साहब को शोकस नोटिस भी जारी कर दिया और उनको सस्पेंड भी कर दिया। अब यहाँ पर भी इमरान खान साहब कुछ नहीं बोले, वहाँ पर भी इमरान खान साहब कुछ नहीं बोले। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए हर एक चीज़ एक ख़ास सिनेरियो के अंदर ही रहती है जो उनको फ़ायदा दे। कल के सारे जो अमल है उसको इमरान खान साहब ने सबूताज किया इस वजह से कि गवाह के ऊपर जो जरा नामुकम्मल है वो मुकम्मल ना हो जाए, और अगर जरा मुकम्मल हो जाएगी तो जज साहब के पास ये जवाज़ मिल जाएगा कि जनाब मैं इस मुकदमे की कार्रवाई को अब समेटना चाहता हूँ, आप अपने तहरीरी दलाइल जो है वो कल तक जमा कराएं। आज अगर वो दलाइल जमा कराने के नोट वो जो है मिल जाता और इसी दौरान आमिर फारूक साहब के पास ये इतला पहुँच जाती कि जनाब उस अदालत के अंदर जो कार्रवाई है वो मुकम्मल हो गई है, फैसला महफूज हो गया है, तब आमिर फारूक साहब के पास इस अपील को सुनने का जवाब ना होता। वो ये कहते हैं जनाब एक कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, उसका फैसला आने दें, फैसला आप चैलेंज कर देना, उस वक्त हम इसको देख लेंगे। लेकिन चूंकि बदनीयती थी और उस बदनीयती को जो है एक्सपोज करना ज़रूरी था, लिहाजा ये सब कुछ हमारे सामने आया है कि जनाब किस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है। अब यहाँ पर जो नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना, ठीक है जी, गिरफ्तारी के उनके वो जो है नोटिस वो उनको मिल चुके हैं। इमरान खान साहब ने पेश नहीं होना, ये बात कल का पता है, लेकिन ये डंडे का जोर इमरान खान साहब को दिखाना जरूर है कि ये डंडे ने जब ऐसे ऐसे करना है ना, हरकत में करना है, डंडे ने ऐसे करके चल, तो उसके बाद मतलब ये है कि खान साहब को चलना पड़ना है। खान साहब उससे किसी भी सूरत आगे पीछे नहीं हो सकते। वो ये नहीं कह सकते कि जनाब मैंने नहीं चलना, क्योंकि उसके बाद डंडे ने हरकत करते हुए लाश डाल देनी है अच्छी खासी। लिहाजा इमरान खान साहब को इस हवाले से जो पैगाम है कल के दिन का वो यही है कि जनाब आपने अब मौजूदा हालात में किसी भी तरीके से कोई ऐसी हैंकी पैंकी नहीं करनी जिसका नतीजा डंडे की शक्ल में है, क्योंकि एजेंडा तय हो गया। एजेंडा क्या है? पाकिस्तान की मीशत की बहाली। एजेंडा क्या है? पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम। एजेंडा क्या है? पाकिस्तान की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एजेंडा क्या है कि किसी तरीके से इस प्रोसेस के अंदर रखना अंदाजी नहीं करनी जाएगी। और इस एजेंडे का आउटकम क्या है? पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालना, पाकिस्तान का कशकोल तोड़ना, पाकिस्तान को एक माशी ताकत बनाना और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना। ये एक रिजॉल्व है। क्या ये रिजॉल्व गलत है? यकीनी तौर पर ये रिजॉल्व गलत नहीं है। अब इस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसको इख्तियार करना है, और वो रास्ता हमें रोड मैप कब मिलेगा? वो रोड मैप मिलेगा हमें अगस्त के अंदर, जब नए इलेक्शंस को अनाउंस किया जाएगा। अब कल की तकरीब से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि ये रिजॉल्व तक जाने के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये जो इलेक्शंस हैं ये नवंबर में हो जाए, और नवंबर में इनके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ जो नताइज हैं वो मुंसलिक हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिकली एजेंडा की गवर्नमेंट होगी, अवाम के मैंडेट वाली गवर्नमेंट होगी बज़ाहिर, तो उसके नतीजे में पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना भी आसान होगा और उन पॉलिसीज़ से नताइज अख्ज़ करना भी आसान होगा, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। आर्मी चीफ ने इस हवाले से अपना एजेंडा वाज़ेह कर दिया है, और अब देखना यह है कि दीगर इदारे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।